Good evening, all of you. I, CA Prabhat Kumar, Secretary of Ranchi Branch of CIRC of ICI, welcome all of you. Today, we are here for webinar on annual compliance, which is required for each private and public company for whole the year. Awesome. That is mandatory. And today's our speaker is on to him. He has come. अरे यार Previously कैसे होगा? to our also he has attended our webinar and given his expression. Now I would like to invite our Prabhat, Ranchi branch internet is not chairperson CA stable. Manisha Biani to welcome our today's speaker. A very good evening. Hope my voice is clear to everybody. Yeah. Okay. A very good evening. I, Manisha Biani, chairperson of Ranchi branch of Institute of Chartered Accountants of India, welcome CS Devesh Goyal, who's from Delhi, is a member of the Institute of Company Secretaries of India, and is a vibrant company law practitioner. My Ranchi branch committee members, all the senior members who are part of the today's session, and my dear colleagues. I welcome you all to the webinar on annual compliance of public and private limited company. As the audit is round the corner, so we need guidance in complying with all the provisions of the Companies Act, and Devesh sir would guide us in doing so. I would like to inform you that we are having a program with the Women Empowerment Committee at Center. It will be on the next weekend. It will have professionals from various fields in service as well as practice, and they will share the success stories, and they will also tell us how to maintain a work balance. So our own CA Kamisha Soni ma'am, who is a central council member and who's the chairperson of the committee, will also be with us. Also, there is a program which is hosted by CIRC on 4th of September with the CPC team, ITR CPC. I would request everyone, if there are any suggestions and queries regarding the program or any queries for the CPC, they should compile it and send to our branch by tomorrow evening so that we can send it to CIRC, and they will also send the queries to the CPC so that these queries can be dealt with in the program. We were supposed to have an advanced Excel course in the first week of September, but due to less participation of members, we are not able to do it. I would request each one of you to go on the SSP portal and then to the DAR portal to see the video for that advanced Excel course, what the course includes. I'm very much sure that after seeing the video, you all will be inspired to join the course, and then we can have it as soon as the number of minimum participants is reached. We are having ITT courses for CA students, and we are lacking in the faculty strength. I would request people who are DSA qualified and having 2 years of experience, kindly do a selfless work for the fraternity and give their applications so that we can empanel them as the faculty. There is a sad news that CABC Datta sir, who was one of the senior most member, left. Due to this pandemic, it will not be advisable for us to hold any condolence meeting for him. But we can just pray for the departed soul and also for the family to gather enough strength to bear this loss. Om Shanti. Thank you. Over to Prabhat. Mute. Prabhat, you're on mute. Thank you, ma'am. Before starting this webinar, I would like to deliver a brief career profile of today's speaker.
CS Divesh Goyal is fellow member of Institute of Company Secretaries of India, having rich experience in legal and secretarial matters. He is young and energetic, practicing company secretary with zeal to dig deep into the nonsense of corporate laws. Being a researcher at heart, he has done rigorous research and has written various articles on Companies Act 2013 to keep at pace with the latest changes and critically analyze the implications of various provisions of the new act. His articles have been published in ICSI magazine and popular at various professional websites. He has also deliberated at various forums on company law and allied matters. He has also co-authored various publications of ICSI, including Company Law Premier Book. Now, I would like to hand over the session to today's webinar speaker, CS Divesh Goyal. Over to Divesh Goyal ji. Thank you, Prabhat. Thanks for the brief introduction. Hope my voice is clear. Yeah. So, first of all, I would like to thanks to the Ranchi chapter, Ranchi branch of CIRC, Pankaj ji, Manisha ma'am and Prabhat ji for inviting me for the discussion on the company law and the allied matters. As this is my love with the Ranchi chapter, कि अब Ranchi chapter से last 1.5 year, approximately 2 years से continue Ranchi chapter के साथ एक connection बना हुआ है. Hope you all are also enjoying my session in the Ranchi chapter of CIRC. So generally इस बार भी जब पंकज का फोन आया invite करने का, तो my answer was like same yes, कि I'm always ready for the Ranchi chapter. तुम बताओ करना कब है, हम कर लेंगे. पर इस बार difference इतना था, हर बार पंकज पूछते सर किस दिन आ रहे हो, इस बार पूछ रहे थे सर बस किस दिन ऑर्गेनाइज करना है, आप किस दिन फ्री मिल जाओगे ऑफिस में. So due to this COVID-19 definitely pandemic situation के कारण worldwide situation काफी different हो गई है. But उससे कुछ पॉजिटिव चीजें भी हमने सीखी है, कुछ निकल के आई है. वेबिनार इज वन ऑफ दैट. अर्लियर बिफोर कोविड-19 जनरली अगर हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो मीटिंग्स के लिए भी अगर कंसेप्ट डिस्कस किया जाता था, तो वी वाज लाइक हेसिटेटिंग कि नहीं, हमें ऑनलाइन कंसेप्ट वेबिनार्स नहीं करने हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स नहीं करनी है. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बोर्ड मीटिंग्स. जनरली बोर्ड मीटिंग 2014 में कंसेप्ट आया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, बट अभी तक ऑलमोस्ट 1 या 2% कंपनीज इन इंडिया was using the concept of the board meeting. But after these last 6 months or last 4 months of the COVID-19, now everyone is habitual about these meetings and the webinars. Now you can see because of this webinar, there is no limitation of place. Today I am sitting in Delhi and we are having the session as a Ranchi with all the members of the Chartered Accountant Institute of Ranchi. So these are we can see we have learned these things from the COVID-19. तो डेफिनेटली काफी सारी नेगेटिव थिंग्स के साथ कुछ पॉजिटिव थिंग्स भी हमने सीखी है इन लास्ट 4 मंथ. वेबिनार इज वन ऑफ दैट. तो आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू रांची चैप्टर एंड द कमिटी मेंबर्स कि आप लोग इतने एफर्ट्स भी कर रहे हैं इस टाइम भी, कि मेंबर्स को ड्यू टू इस कोविड-19 सिचुएशंस में भी मेंबर्स की नॉलेज इंक्रीज हो रही है, उन्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है. और वेबिनार्स ने प्लेस की लिमिटेशन, टाइम की लिमिटेशंस को तो सब चीजों को दूर कर ही दिया है. So today we are going to discuss about a very relevant topic, or we can say very easy topic relating to the annual compliance calendar of a company. Generally क्या होता है कि as a chartered accountant, as we all are the chartered accountant, company secretaries are here. As a chartered accountant, generally क्या रहता है कि हम लोग we are working in many acts. We are working on the GST, income tax, company law. But whenever we talk about any specific act, तो जो एक क्वेश्चन हमेशा माइंड में होता है कि इस एक्ट के अंदर मैंडेटरी कंप्लायंसेस हमें ईयर में क्या-क्या करने हैं. ऐसे कौन से मैंडेटरी कंप्लायंसेस है कि वो हमें करनी है, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. So today we are going to discuss those type of compliances, कि whether your company is a working company, your company is a non-working company, whether your company having a nil turnover or turnover of thousands, crores and all. But what are the mandatory compliances that every company is required to do? In India, we know that almost 70% of the companies are private limited companies. And in last 6 years, like GST में regular base पे amendment आते हैं कि जब भी आप GST की साइट खोल लो, regular कुछ ना कुछ नया amendment देखने को मिल जाता है. Same situation is going with the Companies Act. कि last 6 years में Companies Act में भी बहुत सारे amendments आए हैं. उन amendments को हम ऐसे देख सकते हैं कि 2019 एक ऐसा calendar year था in the history of Companies Act कि एक भी ऐसा मंथ नहीं था जब कोई ड्यू डेट नहीं थी. So it was the first time in 2019
कि पूरे ईयर में एवरी मंथ कोई ना कोई ड्यू डेट ट्रिगर हो रही थी। तो अब जो इतनी ड्यू डेट्स बढ़ी थी तो डेफिनेटली उन ड्यू डेट्स के साथ कंप्लायंस लेवल भी काफी इंक्रीज हुआ है कंपनीज का, और मिनिस्ट्री ने भी रेगुलर बेस पे अमेंडमेंट्स के बाद बहुत सारे कंप्लायंसेस को, वी कैन से कि कंप्लायंसेस को टच किया है, काफी सारे कंप्लायंसेस इंक्रीज हो गए हैं। इस ईयर तो ड्यू टू कोविड-19 सारी सिचुएशन चेंज हो गई है, सारी ड्यू डेट चेंज हो गई है। द मेजर डिफिकल्टी दिस डेज कि वी आर नॉट अवेयर, वी आर नॉट रिमेंबरिंग कि अब कौन सी ड्यू डेट है, अब कौन सी ड्यू डेट है, बिकॉज़ रेगुलर बेस पे डेट्स अपडेट हो रही है, whether it is a companies act, SEBI, RBI, GST, रेगुलर बेस पे न्यू नोटिफिकेशंस आ रहे हैं और डेट्स एक्सटेंड हो रही है। तो इस साल तो whatever compliances we are going to discuss this year, definitely dates has been changed, but अभी जो मंथ चल रहा है we are on the 29th August, अभी तक जितनी भी रिलैक्सेशन मिनिस्ट्री ने दी है, गवर्नमेंट ने दी है, सभी रिलैक्सेशन मैक्सिमम सितंबर तक की है। So now the coming month is the month when we have to do lot of compliances जो लास्ट 5 मंथ में हम कोविड के कारण नहीं कर पाए थे, जो हमें नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर कंप्लीट करने हैं। और as you all are the chartered accountant, August and September is the month of audits. We can say these 2 months are the most hectic month of the chartered accountants कि balance sheets prepare करना, returns, everything is going on. So the major challenge is this time कि along with all these balance sheet preparations, income tax returns, we have to do lot of compliances of the Companies Act. Companies Act के वो सभी compliances जो लास्ट 4 मंथ में हम नहीं कर पाए, अब सितंबर मंथ में भी हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे। So brief के साथ let's start with our today's session. Annual compliances for the private companies. अब private companies की as many senior members are also attending this session, when there was the Companies Act 1956 and जब Companies Act 2014 आया, 1956 में जनरली अगर कोई पूछता था कि एक मेरे को प्राइवेट कंपनी ओपन करनी है, मैंडेटरी क्या-क्या कंप्लायंस करने पड़ते हैं, तो देयर वाज ओनली वन थिंग इन माइंड कि प्राइवेट कंपनी के केस में ज्यादा कुछ नहीं है, ईयरली दो फॉर्म फाइल करने होते हैं, दैट्स आर द कंप्लायंसेस फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। इसके अलावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के कोई भी कंप्लायंस नहीं होते हैं। बट दैट सिनेरियो हैज बीन चेंज्ड। पहले हम बोलते थे प्राइवेट कंपनी को सिर्फ 2 कंप्लायंस करने हैं, और वो 2 फॉर्म भी हमें याद आते थे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। उससे पहले तो हमें वो 2 फॉर्म भी याद नहीं आते थे। बट वो वाला सिनेरियो पिछले वी कैन से कि लास्ट 6 मंथ में वो वाला सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो गया है। अब वो सिनेरियो नहीं रहा है कि हमें सिर्फ 2 कंप्लायंसेस करने हैं, सिर्फ ईयरली 2 फॉर्म फाइल करने और प्राइवेट कंपनी के कंप्लायंस हो जाएंगे। जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया है, कंप्लायंसेस बढ़े हैं, और नॉट ओनली कंप्लायंसेस के साथ पेनल्टीज भी इंक्रीज हो गई है। एज ऑन डेट अगर हम देखते हैं तो एक फॉर्म ना फाइल करने के लिए हमें बहुत सारी एडिशनल फीसेस और एडिशनल पेनल्टीज पे करनी पड़ती है, जो अर्लियर हमें नहीं करनी पड़ रही थी। तो लास्ट 5 to 6 इयर्स में बहुत रैंडमली चेंज आया इन द कंप्लायंस लेवल। तो दैट्स द रीजन कि आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा डिस्कशन पॉइंट है, वो यही पॉइंट है कि जो इतने सारे कंप्लायंसेस में चेंज आया है, अब एक्चुअल में हमें करने क्या होते हैं, क्या कंप्लायंसेस है जो हमें एक्चुअल में करना है, जिसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है छोड़ने का, या चाहे हमारी कंपनी की, इवन आई नो कि many of us having the companies which are having the nil turnover. There are a lot of companies की जो nil turnovers पे चलती हैं, there are a lot of companies which are working on the 1,000 crore turnover. But the major issue with us कि what are the compliances for those nil companies and what are the compliances for the companies having 1,000 crores of turnover. So as we know now, we all are working under Companies Act 2013. Companies Act 2013 came into effect from the 1st April 2014. So almost 6.5 months complete हो गए हैं Companies Act को. But even in this 6.5 years, even this 6.5 year, we are calling it as a new Companies Act. Why we are calling it as a new? Because regular base पे जो amendments आ रही है, जो regular base पे जो amendments की speed है, वो बहुत frequently हो रही है. Even COVID-19, due to COVID-19, we all are aware कि since March to June, everything was locked down. Still in that period, ministry came with lot of circular, lot of notification. Generally मैं हर बार अपने सेमिनार में एक लाइन बोलता हूँ कि कंपनीज एक्ट के जो अमेंडमेंट की स्पीड है वो इतनी स्पीड हो गई है, इतनी फ्रीक्वेंटली अमेंडमेंट्स हो रही है कि अगर मुझे कल सुबह कोई कंप्लायंस करना है तो मेरा पहला टास्क कल सुबह उठने के बाद ये होगा कि आज के दिन में कोई सुबह नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया। दिस इज द स्पीड ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अमेंडमेंट अंडर कंपनीज एक्ट।
Even yesterday there was amendment under Companies Act. On the regular basis, there are the small amendment. Sometimes what happen ki we just ignore these small amendment, but they impact lot of penalties on the companies. So जब Companies Act 2013 आया, at that time the level of compliances was literally high. उस टाइम जो compliance level था, that compliance level we can say was equal to private companies and public companies. जब Companies Act 2013 लॉन्च हुआ, इफेक्टिव हुआ, compliance level private companies का बहुत हाई था. तो compliance level हाई का मतलब इतने compliances से private company में कि there was no difference in compliance of the private company and public limited companies at that time. So after that, lot of representations has been made to the ministry. बहुत सा ICAI, ICSI, everyone had made the representation. Corporates had made the representation. Then finally, ministry understood, yes, the compliance level which we are increasing, the number of compliances increasing on the private limited companies, actually hampering their working. So they came with two notifications. Ministry has launched two notifications, that first on the 5th June 2015 and second on the 13th June 2017. These two notifications was relating to the exemptions to the private limited companies. After these two notifications, many exemptions has been provided to the private limited companies. Exemptions like I'm saying, there was lot of compliances on the private company. But after these two notifications, some of the compliances, approximately 35 exemption has been provided to the private limited companies. After these 35 exemptions, there was little relaxed with the compliance of the private company. So after 2015, there was a little relaxation in the private limited companies. Otherwise, there was a lot of compliance in private limited companies. So it is my request and suggestion to all the members attending this webinar. There are the two notifications issued by the MCA. One on 5th June 2015, other one on 13th June 2017. Please go through these notifications, because these notifications having lot of exemptions to the private limited companies. Some exemptions are conditional exemptions, some exemptions are non-conditional exemptions. So whatever exemption is a conditional exemption, the benefit with the conditional exemption is that you can use that exemption accordingly for your client. You have to see how you use that exemption for your client. कि कैसे हम उसको use कर सकते हैं, हमारे client के लिए हम उसका कैसे benefit ले सकते हैं उस exemption का. So once you will go through these exemptions, it will be clear to you which type of exemption are there. Like I'm just giving 2 or 3 examples. When Companies Act 2013 came into effect, there was a section 179 which was mentioning that अगर प्राइवेट कंपनी कोई भी बोर्ड रेजोल्यूशन पास करती है सेक्शन 179 में, कोई भी बोरोइंग करती है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करती है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को MGT 14 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा मिनिस्ट्री के पास. ये एवरीवेयर, एवरी कंपनी हैव टू फाइल दिस फॉर्म. तो क्या हो गया, बोरोइंग करना, इन्वेस्टमेंट करना जनरल एक्टिविटी है कंपनी की. तो कंपनी में एवरी डे, एवरी वीक MGT 14 फाइल हो रहे थे. एक हेक्टिक लेवल आ गया था कंप्लायंसेस का. Second, I'm audible? Okay. Second exemption, like private limited companies, we know since starting, जब से Companies Act 2013 आया, private limited company loan to directors नहीं दे सकती है. Loan to director, entities in which director are interested, उन सभी को private limited companies loan नहीं दे सकती है. अब वो चीज क्या थी कि प्राइवेट कंपनीज में लोन नहीं देना, नहीं लेना, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो गई थी. उन सभी रिस्ट्रिक्शंस को जो हटाया, उन सभी रिस्ट्रिक्शंस के लिए जो एग्जम्पशंस थी, वो इस एग्जम्पशन नोटिफिकेशन से सभी को एग्जम्पशंस मिली थी. तो दिस नोटिफिकेशन वाज वेरी हेल्पफुल फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कंप्लायंस लेवल. सो दिस वर द नोटिफिकेशन की जिसके बाद हम बोल सकते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का जो कंप्लायंस लेवल था वो ऑलमोस्ट 1956 एक्ट के इक्वल आ गया था. वहां तक तो ठीक था. पर लास्ट 2 इयर्स में इतने सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, लास्ट 2 ईयर में इतने सारे न्यू फॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं कि देयर इज अ चेंज इन कंप्लायंसेस. पहले हम बोलते थे प्राइवेट कंपनी को साल में सिर्फ 2 फॉर्म फाइल करने हैं,
अब ऐसा कुछ हम बोल ही नहीं सकते हैं. There are lot of forms which private limited companies have to file in a financial year. पहले हमने कभी एज अ ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी ऐसा नहीं देखा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में कोई हाफ ईयरली फॉर्म जाता है. पहले सिर्फ ईयरली जाता था, वो भी अक्टूबर में फाइल करना होता था, तो वी वर वेरी रिलैक्स्ड. बट नाउ देयर आर हाफ ईयरली फॉर्म आल्सो फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. So that's where we can say compliance level has been increased to the different level. So let's start with our presentation. Before starting to presentation, I would like to say to the every participants, if you are having any queries relating to these compliances which we are discussing, or relating to the compliance which we have to do in the next month in the September, like annual filing, DPT, if you are having any queries, please mention the same in the comment box, so that even sometime with the presentation or some after the presentation, we will have discussion on those queries. So let's start with the definition of private limited companies. As we know, as per section 2 clause 68, private company means a company which by its articles restrict the right of transfer of share, limit the number of member up to 200, prohibit any invitation to the public to subscribe any securities of the company. These are the three restrictions जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के साथ थ्रू आउट द लाइफ चलती है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है और जब क्लोज होती है, तब तक ये तीन रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में एज इट इज चलती है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पब्लिक को अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता फ्रीली. प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते. एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज प्रोहिबिट होती है पब्लिक से इनवाइट करने के लिए एनी सिक्योरिटी. तो दीज आर द थ्री रिस्ट्रिक्शन जो लाइफ टाइम प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के साथ चलती है. इसी के साथ कुछ फीचर्स भी है. नो नीड ऑफ मिनिमम कैपिटल. 2017 में अमेंडमेंट आया था, उसके बाद कंपनीज एक्ट से मिनिमम पेड अप कैपिटल का कंसेप्ट रिमूव कर दिया. मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए आज की केस में अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो देयर इज नो क्राइटेरिया फॉर द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल. इवन विद वी कैन से कि 2 रुपए की कैपिटल से भी आज की डेट में आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. व्हाई आई एम सेइंग 2 रुपीस? बिकॉज़ जनरली क्या है, एज पर द लॉ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 2 मेंबर्स. अब मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे, दोनों एक शेयर्स भी अगर लेते हैं 1 रुपीस का भी, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 2 rupees of paid up share capital, but there is nothing else required. तो आज की डेट में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बहुत ज्यादा नंबर्स में इनकॉर्पोरेट हो रही है. जितनी कंपनीज पहले 2-3 सालों में हो रही थी, एक साल में उतनी कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो रही है. तो कंप्लायंस लेवल प्राइवेट कंपनीज का बहुत हद तक इंक्रीज हो गया है. बिकॉज आपको मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं चाहिए. आप 10 लाख तक की कैपिटल से अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आरओसी कोई फीस नहीं चार्ज करता है. These are the some benefits given to the companies these days. Have been allowed to accept deposit from the members. जब Companies Act 2013 आया, उस टाइम प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को शेयर होल्डर से लोन लेना अलाउड नहीं था. बाद में अमेंडमेंट आया, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आई. जो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, 2 एग्जम्पशन नोटिफिकेशन. बाद में एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आई. उन एग्जम्पशन नोटिफिकेशन से अलाउड किया प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को शेयर होल्डर से लोन लेना. उससे पहले तो उनको अलाउड ही नहीं था कि वो शेयर होल्डर से लोन ले सकते हैं. तो आफ्टर वन बाय वन अमेंडमेंट आ रहा है कंपनीज एक्ट में, एंड मेनी थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. सो ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स है. लाइक हमने डिस्कस किया था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को पहले हर बोर्ड रेजोल्यूशन के लिए कैपिटल 14 फाइल करना पड़ता था, बट एग्जम्पशन नोटिफिकेशंस के बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को बोर्ड रेजोल्यूशंस भी फाइल नहीं करने हैं. तो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन बहुत रेलिवेंट है प्राइवेट कंपनीज के लिए. ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी को कोई एडवाइजरी देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, तो एट दैट टाइम दीज एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन. Now let's start about the discussion of the annual compliances for private company. Annual compliances for private companies is our main topic for today. So again, I am requesting to all the members, if you guys are having any queries, please feel free to mention your queries in the comment box. Because of the queries, we can see the session may be more interactive with everyone.
सो एनुअल कंप्लायंस प्लान फॉर प्राइवेट कंपनी, नाम से ही पता चलता है एनुअल कंप्लायंसेस कि व्हाट आर द एनुअली कंप्लायंस, और फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को क्या-क्या कंप्लायंस करने पड़ते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस कंप्लायंसेस. अब जब हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो एक कंपनी का फाइनेंशियल ईयर, कंपनीज एक्ट 2013 में फाइनेंशियल ईयर कंपनी का हो सकता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. तो फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही होगा. 1% ऐसी कंपनीज होगी जिनका फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट होगा फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, और वो 1% आरओसी ने अलाउड किया है कौन सी कंपनीज को. इफ योर कंपनी हैविंग एनी होल्डिंग subsidiary or associate incorporated outside India, in that case only you can change your financial year. मतलब अगर एक कंपनी को अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है, एक कंपनी को अपना फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च के प्लेस पे कुछ और करना है, तो वो तीन ही सिचुएशन में कर सकता है. या तो उसकी होल्डिंग कंपनी आउट ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड हो, या उसकी सब्सिडरी कंपनी आउट ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड हो, या उसकी एसोसिएट कंपनी आउट ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड हो. इन तीनों में से एक कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करवा सकते हो. और फाइनेंशियल ईयर चेंज करवाने के लिए आपको रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए, आपको एक प्रॉपर एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, एक प्रॉपर वे आउट फुलफिल करना पड़ता है. So we can say 99% of companies in India having financial year April to March. So अगर 99% कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है, तो उसी के अकॉर्डिंग आज हमने अपनी प्रेजेंटेशन को भी उसी में डिवाइड किया है कि अप्रैल टू मार्च तक हमें क्या-क्या कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं. So we have divided our presentation in 4 parts in 4 quarters: April to June, July to September, October to December, like this. So let's discuss the first compliance of a financial year. Financial year का हमारा पहला compliance क्या है? Receipt of MBP1. फाइनेंशियल ईयर का हमारा जो पहला कंप्लायंस है वो है रिसीप्ट ऑफ MBP1 अंडर सेक्शन 184 सब सेक्शन 1. अब रिसीप्ट ऑफ MBP1 हमने तो इसको कभी कंप्लायंस में कंसीडर किया है या नहीं किया है. यू विल हैव टू थिंक कि हम इसको कंप्लायंस में कंसीडर करते भी आए हैं या आज तक कंसीडर ही नहीं किया हमने इसको कंप्लायंस में. MBP1 होता क्या है? लेट्स डिस्कस द MBP1. एवरी डायरेक्टर ऑफ कंपनी in the first meeting of board of directors in each financial year shall disclose his interest in other entity. So as per section 184 subsection 1, every director company के every director को every year first meeting से पहले अपना MBP1 देना होता है कंपनी को. अब MBP1 क्या चीज है? MBP1 में डायरेक्टर्स डिस्क्लोज करेंगे उनका इंटरेस्ट लाइक डायरेक्टर की डायरेक्टरशिप कहाँ है, उस पर्सन की शेयर होल्डिंग कहाँ है, किन पार्टनरशिप फर्म में वो पार्टनर है, कौन सी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स उसकी है, कौन सी ऐसी एलएलपीज है जिसमें वो पार्टनर है या डेजिग्नेटेड पार्टनर है, लिस्ट ऑफ रिलेटिव एंड द इंटरेस्ट ऑफ द रिलेटिव्स. All these information are required to mention in MBP1 form. अब MBP1 form from the point of view of the chartered accountant. Now you all are the chartered accountant and जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, this is the month of August and September. ये दो ऐसे मंथ है जब हमें काफी सारे एनुअल कंप्लायंसेस करने होते हैं, बैलेंस शीट्स प्रिपेयर करनी होती है, डायरेक्टर रिपोर्ट्स बनानी है, बहुत कुछ करना है. मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोगों को ऑडिटर रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है. एंड आई मस्ट से कंपनीज एक्ट में जो पिछले 6 सालों में अमेंडमेंट आए हैं, उन 6 सालों में अमेंडमेंट में एक सबसे बड़ा अमेंडमेंट क्या है कि उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे रिस्पांसिबिलिटी बहुत बढ़ा दी है. देयर आर अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑन द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन लास्ट 6 years. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर लायबल फॉर लॉट ऑफ थिंग्स. लाइक अगर मैं कारों का छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, कारों के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि कंपनी ने सेक्शन 197 का कंप्लायंस किया है. सेक्शन 197 इज रिलेटेड टू द रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर. तो कारों में स्पेसिफिकली सेक्शन देके रिस्पांसिबिलिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट पे डाल दी है कि आप चेक करो कि कंपनी ने प्रॉपर रेम्यूनरेशन के लिए लॉ फॉलो किया है क्या नहीं. स्पेसिफिकली कारों में मेंशन है कि कंपनी हैज कंप्लाइड विद सेक्शन 73 ऑफ कंपनीज एक्ट, डिपॉजिट्स, लोन्स,
दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर ऑल्सो अलोंग विद द डायरेक्टर्स कि ऑडिटर चेक करेगा कि सेक्शन 73 फॉलो किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो कारों में रिमार्क देगा, रिमार्क नहीं दिया तो इट इज पार्ट ऑफ द नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑडिटर ऑल्सो। तो लास्ट 6 ईयर में ऑडिटर्स पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी लेवल तक के ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो गई है, बिकॉज बहुत कुछ इंप्लीमेंट हो गया है, बहुत कुछ चीजें ऑडिटर के ऊपर इंप्लीमेंट कर दी गई है, तो इसलिए ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज। लाइक ऑडिटर रिपोर्ट में ऑडिटर को कंपनीज एक्ट के नॉन कंप्लायंसेस के रिगार्डिंग सारी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो ऑडिटर्स रिपोर्ट में भी वो सारी चीजें डाल दी है। तो काफी सारे डिफरेंसेस आए हैं, काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिटर्स पे आ गई है। So from the point of view of the auditor, MVP1 is very much important for that, because you all are preparing the financial statement of the company, you all are preparing the AS18 related party transaction। अब related party transaction के लिए सबसे पहले डायरेक्टर्स के इंटरेस्ट कहाँ है, डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स कौन है, ये सब चीजें भी तो पता होनी चाहिए। इन सब चीजों को नो डाउट आप लोग कंपनी से लेते हैं, बट MVP1 इज ऑल्सो अ सोर्स जहां से आप इंफॉर्मेशन उनसे ले सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है उसके रिगार्डिंग आपने डिस्क्लोजर्स दिया है या नहीं दिया है। और अगर डायरेक्टर MVP1 नहीं देता है, इट इज अ नॉन कंप्लायंस अंडर सेक्शन 184 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। और कोई भी नॉन कंप्लायंस होता है तो ऑडिटर्स आर लायबल टू मेंशन द सेम इन द ऑडिट रिपोर्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर जब अप्रैल से जून स्टार्ट होता है, पहले क्वार्टर में सबसे पहला कंप्लायंस तो आपको MVP1 लेना है, और MVP1 को आपको उसके बाद भी लेना है। एवरी डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट with the company a fresh MVP1 whenever there is a change his interest from earlier MVP1। अगर डायरेक्टर का कहीं इंटरेस्ट चेंज होता है तो जब साल के बीच में डायरेक्टर का इंटरेस्ट चेंज होगा उसको MVP1 देना पड़ेगा कंपनी को। This is a mandatory thing, this is a mandatory compliance is everyone have to do। And earlier there was the requirement कि MVP1 लेने के बाद कंपनी एक MJT14 फाइल करेगी अटैच करके MVP1, बट एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में उसे रिमूव कर दिया गया है। आज की डेट में आपका MVP1 कहीं फाइल नहीं करना है। MVP1 is the document of the company, we don't require to file with the ministry, but it is a mandatory compliance of a company। If you are having any query, अगर किसी भी पॉइंट पे तो immediately you can mention in the comment box। Someone has mentioned what type of interest that person have to mention in MVP1। Okay, as I discussed in MVP1, that person have to mention his directorship in other companies, his shareholding in other companies, his partnerships firms, proprietorship firms, list of relatives, interest of directors also। So all this information is required to mention in the MVP1। So as you have asked the question, तो हमारे चाहे directorship से related interest हो, shareholding ship से related हो, partnership, proprietorship, किसी भी type से हमारा कोई interest हो, किसी भी type से we are having any interest in those entities, we have to mention in MVP1। और it is suggested and recommended कि auditors जब भी audit करते हैं तो MVP1 definitely check करें। Now let's move to the second compliance। Second compliance is of the quarter April to June, that is relating to the DIR 8 under section 164(2). Every director of company in each financial year will submit with the company disclosure of non-disqualification। This is a very important compliance, DIR 8। DIR 8 important compliance किस लिए है? Because sometime professional raising the queries, even मेरे पास भी बहुत सारी queries आई through my WhatsApp group, Telegram group कि सर DIR 8 yearly लेना है, ये कहीं एक्ट में मेंशन नहीं है, तो why we are taking the DIR 8 on the annual basis? Why you are saying कि हमें DIR 8 annual basis पे लेना चाहिए? So I would like to discuss this question according to that angle। DIR 8 का पर्पस क्या है कि जो पर्सन DIR 8 दे रहा है, जो डायरेक्टर DIR 8 दे रहा है, वो एक डिक्लेरेशन दे रहा है कि मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ एज डायरेक्टर। और डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होती है? सेक्शन 164 में लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होती है। जो सबसे मेजर ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन का,
कि मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूं, उस कंपनी ने लास्ट 3 इयर्स में कोई भी फाइलिंग नहीं की है। अगर मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं और उस डायरेक्टर ने अगर लास्ट 3 इयर्स में कोई भी एनुअल फाइलिंग नहीं की है, then I will be considered as disqualified. अब यहाँ पे भी एक पॉइंट आता है, जनरली क्या होता है कि if you will discuss with a professional or if you have done the thing, जनरली हम डिस्क्वालिफिकेशन कैसे चेक करते हैं कि दिन का स्टेटस क्या है। दिन के स्टेटस पे अगर डिस्क्वालीफाई आ रहा है तो हम डिस्क्वालीफाई मानते हैं, दिन के स्टेटस पे एक्टिव आ रहा हो तो हम एक्टिव मानते हैं। I will say this is a completely wrong approach because law क्या बोलता है, सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, सेक्शन बोलता है जैसे ही एक कंपनी ने 3 सालों तक फाइलिंग नहीं की, उसकी ड्यू डेट 3rd ईयर की फाइलिंग की जो ड्यू डेट होगी उसके नेक्स्ट डे से इमीडिएटली वो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। डजंट मैटर कि उस डायरेक्टर के दिन का स्टेटस क्या है, बिकॉज यू नो मिनिस्ट्री इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेती है, इतनी जल्दी मिनिस्ट्री के सिस्टम्स नहीं है कि वो चेक करे 3 साल और डिस्क्वालीफाई कर दे। तो मिनिस्ट्री ने डिस्क्वालीफाई किया या नहीं किया मैटर नहीं करता, अगर 3 सालों तक फाइलिंग नहीं है तो वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा लीगली। और सबसे बड़ी चीज इस एक्ट की क्या है, एक पर्सन अगर एक बार डिस्क्वालीफाई हो गया तो वो अगले 3 साल तक डिस्क्वालीफाई रहेगा। Once disqualified for अगले 5 साल तक, once a person disqualified shall be disqualified for the next 5 years. कंपनीज एक्ट में किसी भी अथॉरिटी के पास लाइक एनसीएलटी, रीजनल डायरेक्टर, आरओसी, किसी के पास कोई पावर नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव करने की। There is only one way out which we are also using these days. Throughout Pan India we are using this approach कि अगर हमें आज की डेट में किसी की डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव करनी पड़ती है तो the only way out, the only thing which we are using is High Court writ petition. And High Court writ petition से भी हमें सिर्फ interim stay मिलेगा, अभी फाइनल ऑर्डर जब तक सुप्रीम कोर्ट का नहीं आता। तो अब यहाँ पे इशू क्या आता है, डिस्क्वालीफाई है, अगर कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई है तो एज अ पॉइंट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट आई एम डिस्कसिंग कि हमें डीआईआर 8 क्यों लेना है। अगर कोई डायरेक्टर अपने आप डिक्लेरेशन देता है डीआईआर 8 में एवरी ईयर कि आई एम नॉट डिस्क्वालीफाइड, आई एम एलिजिबल टू कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर, तो इट इज बेनिफिशियल एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बिकॉज, अब मैं मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अस। As per section 143 subsection 3 clause G, it is specifically mentioned that it is the responsibility of the statutory auditor to mention in the auditor report whether any director was disqualified or not. तो ये statutory auditor की responsibility है, statutory auditor की specific responsibility है कि उन्हें every year ऑडिटर रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देना पड़ता है डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई है या नहीं है। अगर डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई है तो अकॉर्डिंगली आप मेंशन करेंगे, नहीं है तो अकॉर्डिंगली। तो उसके लिए आपके पास बेस क्या है, तो एक बेस उसमें से है डीआईआर 8। अब डीआईआर 8 लेंगे जिसमें डायरेक्टर खुद डिक्लेयर कर रहा है कि ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड, ही इज क्वालिफाइड टू कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर। That's why every year company should take a DIR 8 from the directors of all the directors of the company, because it is a responsibility of the auditors also with the directors to notice, to mention the same thing in the presentation, same thing in the auditor report. So this is the second compliances of the year. Now I am having one question, I'm just reading that. Okay, it is in a continuation to the MVP 1 compliance. If there is no change in the interest, if there is no change in the interest of the director since last year, from the last year we have given an MVP 1 and इस साल तक कोई चेंज नहीं है, फिर भी every year फर्स्ट बोर्ड मीटिंग से पहले सभी डायरेक्टर्स को MVP 1 सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर इंटरेस्ट में चेंज आता है तो साल में जितनी बार, ईयर में जितनी बार चेंज आएगा उतनी बार MVP 1 देना पड़ेगा। बट चेंज है या नहीं है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग से पहले तो डेफिनेटली देना ही पड़ेगा। So if anyone have any query relating to the disqualification, because disqualification के केस में एक दो पॉइंट्स मैं डिस्कस करता हूँ। डिस्क्वालिफिकेशन के केस में क्या है, many time we have seen and noticed sometimes the director is disqualified but that director is signing the balance sheet, and not only that director, along with that auditor is signing that page of the balance sheet,
So how it is possible? Because once a director is disqualified, he is not allowed to sign the balance sheet of the company. So if he is not allowed to sign the balance sheet, तो वो कैसे साइन कर सकता है? और many time I have seen कि disqualified director ने भी balance sheet साइन की है और simultaneously disqualified director के साथ auditor ने भी balance sheet साइन किया. So it is a big non-compliance on the part of the director as well as the auditor. So this year, now this is the month of September, you are going to sign lot of balance sheet. Please make sure कि जिस भी directors ने जिस दिन sign किया है, उस दिन उसका status क्या है? Not only status of him, actual status कि वो disqualify है या नहीं है, you have to check this. इससे related if you want to ask anything, please mention. There is the one query I'm going to take. If director holding post as ex officio and he is disqualified in concerning organization, kind of disqualification. See, once a director is disqualified, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, बाकी तो आप किसी भी पोजीशन पे उसे अपॉइंट कर सकते हो. एक्स ऑफिशियो पोजीशन की वो लास्ट डायरेक्टर था, एक्स डायरेक्टर हो सकता है कंपनी का. इवन ही कैन कंटिन्यू एज अ शेयर होल्डर, ही कैन कंटिन्यू एज अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, बट ही विल जस्ट डिस्क्वालिफाइड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. So as per your question, disqualify concerning organization tend amount to disqualify. So as a director वो disqualify है, बाकी सभी पोजीशन पे वो कंटिन्यू कर सकता है. एज एम्प्लॉय भी रह सकता है, एज अ शेयर होल्डर भी रह सकता है. इवन एज अ शेयर होल्डर वो कंपनी की EGM AGM भी अटेंड करेगा. बिकॉज जो डिस्क्वालिफिकेशन लगाई है सिर्फ उसकी डायरेक्टरशिप पे लगाई है, उसके अलावा कोई डिस्क्वालिफिकेशन उस पर्सन पे नहीं लगी है. So this was the second compliance of the half year. How can we find the date of disqualification? This is a very simple thing. अगर disqualification का बेस ये है कि उस डायरेक्टर की उस कंपनी ने 3 सालों से फाइलिंग नहीं की है, तो आप ये चेक करिए कि 3 इयर्स आपके पास डायरेक्टर्स की कौन कौन सी कंपनी में एक पर्सन डायरेक्टर है, हम चेक कर सकते हैं. एमसी की साइड से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि उन कंपनीज की फाइलिंग कब तक हुई है. तो जिस कंपनी की 3 साल तक फाइलिंग नहीं हुई थी, अब फाइलिंग नहीं हुई है 3 साल से, उसकी ड्यू डेट क्या होगी? अक्टूबर लास्ट, बिकॉज 30 सितंबर इज ड्यू डेट फॉर द एजीएम और उसके 30 डेज में एओसी 4 फाइल करना होता है. तो जो अक्टूबर लास्ट, जब तक 3 साल तीसरा साल कंप्लीट हुआ जिस अक्टूबर में, 1 नवंबर से दैट डायरेक्टर शैल बी कंसीडर्ड एज अ डिस्क्वालिफाइड. तो वहां से आपको बेस मिलेगा, वहां से आपको डेट मिलेगी फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर. Third compliance of the year, third compliance of the quarter, that is relating to the, so one more query is there, better to discuss the query relating to DIR rate here only. In receipt of DIR rate from the director and review of the same by auditor is enough on the part of the auditor. See, according to me, we are the professionals, so we don't have any limits as per the law or as per the government. Government के और law के according हमारी कोई limits नहीं है. हमें हर उस चीज में घुस के देखना है कि क्या कंप्लायंस किया नहीं किया. डायरेक्टर ने DIR दिया, वन पार्ट हम सेटिस्फाइड है, वन पार्ट हम सेफ है कि हमारे पास डायरेक्टर का DIR 8 है, उसमें उसने लिखा है वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है. सेकंड पार्ट, उस DIR 8 को आप चेक करेंगे, उस DIR 8 में जो कंपनीज LLP मेंशन की है, आप चेक करो उनका स्टेटस कि उन्होंने फाइलिंग किया है या नहीं किया है. अगर नहीं किया तो वो डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा, इवन चाहे उसने DIR 8 दिया है या नहीं दिया है. Okay, one question is there. My question is, if he hold position as ex officio director, due to holding some position is causes trust disqualified from the trust, then automatically being disqualified in present company. हाँ sir, actually I'm not getting your question that trust disqualify from the trust, that trust कैसे disqualify होगा या trustee कैसे disqualify होगा, because disqualification is only with the director only. So I'm not getting your question. If you can clarify it, I can take later on. Third compliance is the half yearly return. Half yearly return under section 405. अभी तक जब भी प्राइवेट कंपनीज की बात करते थे, हम सिर्फ बात करते थे ईयरली रिटर्न की, और वो भी क्या होती थी 2 रिटर्न्स की. इससे ज्यादा हम बात नहीं करते थे कि साल में 2 रिटर्न फाइल करनी है, बस ईयर में 2 रिटर्न फाइल करनी है. दैट्स द कंप्लायंस ऑफ द प्राइवेट कंपनी. इसके अलावा हमें कोई कंप्लायंस नहीं करना पड़ता है. बट सिनेरियो अब चेंज हो चुका है.
Now there is a half yearly return also along with the yearly return. Half yearly return on the private companies MSME 1. As per section 405, company have to file this return half yearly in respect of pending payment to the MSME vendor at the end of half year. तो हाफ ईयरली रिटर्न है तो साल में 2 बार फाइल करना पड़ेगा। अक्टूबर टू मार्च के लिए ड्यू डेट है 30 अप्रैल, अप्रैल टू सितंबर के लिए ड्यू डेट है 30 अक्टूबर। तो 30 अप्रैल इज आल्सो फॉलिंग इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर। सो दिस इज द कंप्लायंस कि हमें 30 अप्रैल तक सभी कंपनीज को अपना एमएसएमई फाइल करना ही पड़ता है। दिस इज द ईयर ड्यू टू कोविड-19 ये 30 अप्रैल एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दी गई है, बट अदरवाइज एवरी ईयर हमें फाइल करना है। लाइक सितंबर इज कमिंग, सो कम सितंबर के बाद क्या होगा, सितंबर के बाद नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर में भी आपको एमएसएमई फाइल करना पड़ेगा। तो इस साल जिन कंपनीज ने अप्रैल में नहीं फाइल किया है, एक एमएसएमई तो वो फाइल करेंगे सितंबर में 31 मार्च तक का, दूसरा एमएसएमई फाइल करेंगे अक्टूबर में 30 सितंबर तक का। तो डेफिनेटली एज आई वाज सेइंग इन स्टार्टिंग कि नेक्स्ट 2 मंथ सिर्फ आपके ऑडिट पर्पस से हेक्टिक नहीं है, नेक्स्ट 2 मंथ कंपनी लोग के भी बहुत सारे कंप्लायंसेस हमें करने पड़ेंगे, बिकॉज ऑलरेडी मिनिस्ट्री ने 6-6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है। तो इट्स सीम्स डिफिकल्ट कि और ज्यादा एक्सटेंशन मिनिस्ट्री देगी इन कंप्लायंसेस के लिए। अब जब हम एमएसएमई की बात करते हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस वन ट्रिक अबाउट द एमएसएमई। जनरली प्रोफेशनल की क्वेरीज आती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मोस्टली थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप कि एमएसएमई कब फाइल करना है, क्या फाइल करना है, ये हम कैसे याद रखें। तो आई विल से इसके लिए 3 कंडीशन है। पहला हमें चेक करना है कि क्या कंपनी का कोई एमएसएमई वेंडर है या नहीं है। एमएसएमई वेंडर ही नहीं है तो एमएसएमई फॉर्म फाइल ही नहीं करना, बट एमएसएमई वेंडर है। देन हमें सेकंड क्राइटेरिया चेक करना है, एट द एंड ऑफ हाफ ईयर क्या उस एमएसएमई वेंडर की कोई पेमेंट पेंडिंग है या नहीं है। कोई पेमेंट पेंडिंग नहीं है तो भी फॉर्म नहीं फाइल करना है, बट इफ आई विल से कि एमएसएमई वेंडर भी है और पेमेंट भी पेंडिंग है, तो मैं थर्ड कंडीशन चेक करूंगा कि जो पेमेंट पेंडिंग है क्या वो 45 डेज से कम के लिए पेंडिंग है या 45 डेज से ज्यादा की पेंडिंग है। पेंडिंग पेमेंट 45 डेज से कम पेंडिंग है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर पेंडिंग पेमेंट 45 डेज से ज्यादा के लिए पेंडिंग है, देन मुझे एमएसएमई 1 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास। तो 3 कंडीशन, पहला चेक करो एमएसएमई वेंडर है या नहीं है, सेकंड कोई पेमेंट पेंडिंग है या नहीं है उसकी, थर्ड अगर पेंडिंग है तो 45 डेज से ज्यादा के लिए पेंडिंग है या नहीं है। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तीनों कंडीशन में यस है, तो हमें एमएसएमई 1 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा एवरी हाफ ईयर। अब हम एनुअल कंप्लायंस तो डिस्कस कर ही रहे हैं, हमारा दूसरा पर्पस है इन एनुअल कंप्लायंसेस का हमारी ऑडिट्स पे क्या इंपैक्ट आएगा। इन एनुअल कंप्लायंसेस का, इन छोटे-छोटे कंप्लायंसेस का ऑडिट कहां इंपैक्ट करेगी। अब जब हमने बात की एमएसएमई फॉर्म फाइल करने की, MSME Act is 2006 माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एक्ट। MSME एक्ट का सेक्शन 22 बोलता है एवरी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू गिव अ डिस्क्लोजर इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट द MSME वेंडर पेमेंट्स। लाइक ऑडिटर्स को कंपनीज की बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर देना पड़ता है, स्पेसिफिकली डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि कितने MSME वेंडर है, उनके टाइमली पेमेंट हुई या नहीं हुई, पेमेंट अगर 45 डेज से डिले थी तो इंटरेस्ट पे कर दिया या नहीं किया, कितना इंटरेस्ट पेंडिंग है, कितना एक्रूड है, कितनी कॉन्टिजेंसी बनाई है। सो एवरीथिंग रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड इन डायरेक्ट बैलेंस शीट। बट जनरली होता क्या है, एमएसएमई एक्ट आया था 2006 में, लास्ट वी कैन से 2006 टू 2020 लास्ट 14 इयर्स में किसी ने भी जनरली 90% ऑफ प्रोफेशनल हैव नॉट गिवन एनी फोकस ऑन दिस प्रोविजन। आप देखेंगे तो 90% बैलेंस शीट में एक सेम लाइन लिखी होती है कि कोई एमएसएमई वेंडर नहीं है, कोई पेमेंट पेंडिंग नहीं है। बट द सिनेरियो हैज बीन चेंज। पहले रीजन क्या था, मिनिस्ट्री चेक नहीं कर सकती थी, कि मिनिस्ट्री के पास कोई ऐसा वे आउट नहीं था कि आपका कोई फॉर्म देख के वो चेक कर ले कि आपका कुछ पेंडिंग है या नहीं है। बट अब रीजन क्या हो गया है, आप जिस कंपनी में ऑडिटर हो उस कंपनी ने अगर एमएसएमई 1 फाइल कर दिया था, एमएसएमई 1 फाइल कर दिया था, फाइल उसी केस में करना है जिस देश में 45 डेज से ज्यादा का पेमेंट पेंडिंग है। तो अगर 45 डेज से ज्यादा का पेमेंट पेंडिंग है और फॉर्म फाइल कर दिया है, तो एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर अब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप मेंशन करेंगे या नहीं करेंगे।
now it is mandatory to you कि आपको mention करना ही पड़ेगा कि अच्छा ये पेमेंट से इतना इंटरेस्ट बनता है, इतना इंटरेस्ट पे हो गया है. तो this is a very important point from the point of view of the audit. इस साल जब भी आप ऑडिट कर रहे हैं एज अ जिस भी कंपनी के एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं, मेक श्योर कि ऑडिट के टाइम आप उनके एमएसएमई 1 फॉर्म चेक करें. मेक श्योर कि ऑडिट के टाइम आप एमएसएमई 1 से चेक करें कि बैलेंस शीट में उसका प्रॉपर इंपैक्ट आया है या नहीं आया है. So this is the third compliance of the year. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, one question from my side. Yeah. Sir, if somebody has filed this MSME return, half-yearly return, and he has not taken certain vendors, so ये किसका default हुआ? मतलब कंपनी का हुआ कि जो फाइल करा, मतलब it will be like for the CA और CS also. देखो, अगर दो चीजें हैं यहाँ पे. फर्स्ट थिंग कि MSME 1 फॉर्म तो फाइल किया, बट उसमें सर्टेन पेमेंट, सर्टेन ट्रांजैक्शन नहीं दिखाए थे, ये कंपनी का डिफॉल्ट है. Because it is the responsibility of the company to file this form. As a professional हम इसे सर्टिफाई भी नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं. अब सेकंड पॉइंट आता है, जो MSME एक्ट का सेक्शन 22 है, वो बोलता है दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर की फाइंड आउट करना कि कौन से MSME वेंडर हैं, उनकी पेमेंट हुई या नहीं हुई है. अब ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि आप MSME 1 फॉर्म तो चेक करेंगे ही, बट वी कैन नॉट से कि हमने सिर्फ वो चेक कर लिया था, हम और कुछ नहीं चेक करेंगे. उसके अलावा भी ऐसे कोई ट्रांजैक्शन हमें लगते हैं जो उसमें नहीं मेंशन किया था, तो अगर वो ऐसा कुछ डिलेड है तो हमें मेंशन करना पड़ेगा अपनी बैलेंस शीट में. तो हमें तो मेंशन करना पड़ेगा ही, बट अगर हम बैलेंस शीट में मिस कर देते हैं, देन डेफिनेटली आई कैन से कि वो ऑडिटर की ही डिफॉल्ट है. बट फॉर्म में मेंशन करना था, वहां तक ऑडिटर का डिफॉल्ट नहीं है. ओके. यस. There are some questions in the chat box also. First question is that do we have to file nil MSME 1? नहीं, nil MSME is not required to be filed. Even if you will try to file the nil MSME, MCA site will not accept that. So it is not required to file the nil MSME. जैसा मैंने डिस्कस किया, 3 कंडीशन, अगर तीनों कंडीशन फुलफिल होती है, तीनों कंडीशन पे टिक मार्क यस होता है, उसी केस में हमें MSME 1 फॉर्म फाइल करना है, अदरवाइज हमें फाइल नहीं करना है. हाँ, this is a very relevant question which is asked by Mr. Vinay. How to find out a vendor is covered under MSME or not? पहली चीज, कंपनीज एक्ट की तरह MSME की कोई वेबसाइट नहीं है एमसी की तरह, तो आप ऑनलाइन कहीं नहीं चेक कर सकते कि आपका वेंडर MSME में रजिस्टर्ड है या नहीं है. तो अगर MSME में वेंडर रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए मेरे अकॉर्डिंग तो 2 ही वे आउट है. पहला वे आउट, आप कंपनी अपने सभी वेंडर्स को एक मेल या नोटिस भेजेगी जिसमें कंपनी मेंशन करेगी whether you are registered under MSME or not. Second thing, company will mention if we don't receive any reply from next 10 days, 15 days, it will be considered that you are not registered under MSME. इसके अलावा कंपनी के पास या ऑडिटर के पास कोई ऑप्शन नहीं है फाइंड आउट करने का कि एक पर्सन, एक एंटिटी MSME में रजिस्टर्ड है या नहीं है. तो दिस इज द बेस्ट वे. एज ए ऑडिटर भी आई विल सजेस्ट दिस वे टू यू कि आप अपने क्लाइंट्स को बोलो कि वो मेल्स तो एटलीस्ट भेजे सभी वेंडर्स को, ताकि रिप्लाई नहीं आता तो एटलीस्ट आप एक व्यू ले सकते हैं कि हमने मेल में लिखा था कि रिप्लाई नहीं आता तो विद इन 15 डेज तो हम मान लेंगे कि आप रजिस्टर नहीं हो. तो दैट कैन बी अ बेस फॉर आवर रिपोर्ट्स आल्सो, ऑडिट रिपोर्ट एंड बैलेंस शीट आल्सो. So this query is clear. Will vendor include auditor fees dues or CS fees dues? Yes. See, as per MSME Act, MSME में रजिस्टर कौन करवा सकता है? या तो ऐसी एंटिटी जो मैन्युफैक्चरिंग में हो या ऐसी एंटिटी जो सर्विस में हो. तो ऑडिटर्स एंड द कंपनी सेक्रेटरी आर द सर्विस प्रोवाइडर. सो इफ ऑडिटर या सीएस अगर MSME में रजिस्टर्ड है तो डेफिनेटली आपको चेक करना पड़ेगा कि उनकी पेमेंट भी 45 डेज में हुई है नहीं हुई है. अगर उनकी पेमेंट भी 45 डेज में नहीं हुई है तो उनका नेम भी हमें मेंशन करना पड़ेगा. So this was the third compliance of the financial year. So first was MBP 1, second one was DIR 8, and third one is MSME 1. And this is the fourth one, and I must say कि most critical compliance है. इस फॉर्म को आए 2 साल हो गया है, but whenever there is any discussion is going on anywhere, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं प्रोफेशनल्स के, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के इसको लेकर, and this form is definitely having a major impact on the chartered accountant.
This is the fourth compliance. This is the yearly compliance under Section 73 of the Companies Act. Company is required to file this form every year on or before 30th June in respect of deposits and particular not considered as deposit as on 31st March. इस फॉर्म को फाइल करने की ड्यू डेट है 30th जून. इस फॉर्म में हमें एज अ कंपनी मेंशन करना होता है कि कंपनी के एज ऑन 31st मार्च क्या-क्या डिपॉजिट्स थे, क्या लोन्स थे, क्या एडवांसेस थे, क्या वो लोन्स और एडवांसेस डिपॉजिट थे या पर्टिकुलर नॉट कंसीडर एज डिपॉजिट थे. और ड्यू डेट है 30th जून. तो यहाँ पे जो सबसे मेन क्वेश्चन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आता है, जो कंपनीज का आता है, वो ये कि कंपनीज की बैलेंस शीट बनती है अगस्त या सितंबर मंथ में. अगस्त सितंबर मंथ तक बैलेंस शीट बनती है, तो 30th जून को हम कैसे फाइनलाइज कर सकते हैं कि हमारे कितने लोन्स है, कितने एडवांसेस है एज ऑन 31st मार्च. बट एज पर सेक्शन 73 रूल 16 ड्यू डेट तो 30th जून ही है. और रूल 16 में स्पेसिफिकली मेंशन किया है द फिगर मेंशन इन डीपीटी 3 शुड बी ऑडिटेड फिगर. मींस डीपीटी 3 में हम जो भी फिगर मेंशन कर रहे हैं, those figures should be equally same in your balance sheets also. Sometime I have seen the companies last year DPT 3 में figures कुछ और mention है और balance sheet में कुछ और mention है. This is a non-compliance. This is a non-compliance on the part of company. अगर as a auditor मैं बोलूंगा कि अगर कंपनी ने DPT 3 फाइल कर दिया, आप लोग जब ऑडिट कर रहे हो बैलेंस शीट में अगर अमाउंट डिफरेंट है तो एक डिस्क्लोजर दो साथ में कि कंपनी ने जो DPT 3 फाइल किया है उसमें अमाउंट डिफरेंट है. Because this is the thing कि अब ये 30th जून किस बेस पे रखी है, we are not aware. बैलेंस शीट्स तो आप इसके बेस पे एवरी कंपनी को हम बोल सकते हैं कि अब सभी कंपनीज को 30th जून तक तो कम से कम अपनी लोन्स की फिगर और एडवांसेस की फिगर तो फ्रीज करनी ही पड़ेगी. अदरवाइज आप 30th जून तक फॉर्म फाइल नहीं कर सकते. और यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमें डिपॉजिट के लिए फाइल करना है या पर्टिकुलर नॉट कंसीडर एज डिपॉजिट. जब हमने डेफिनेशन रीड कर रहे थे प्राइवेट कंपनी की, उसमें एक रिस्ट्रिक्शन थी कि प्राइवेट कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द सिक्योर पब्लिक. तो प्राइवेट कंपनी तो डिपॉजिट ले ही नहीं सकती है. तो आई वुड लाइक टू से एज अ ऑडिटर जब भी आप ऑडिट करते हैं प्राइवेट कंपनी के केस में 99.99% जो डीपीटी 3 फाइल होगा तो उसमें हमारे 3 रिमोट बटन होते हैं, डिपॉजिट, नॉन डिपॉजिट. तो प्राइवेट कंपनी के केस में 99% पर्टिकुलर नॉट कंसीडर एज डिपॉजिट ही सिलेक्ट होगा. अगर किसी केस में प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट सिलेक्ट करती है कि इसका सिंपल मतलब है कि प्राइवेट कंपनी ने नॉन कंप्लायंस किया है कंपनीज एक्ट का. बिकॉज डिपॉजिट लेना ही अलाउड नहीं था तो आप डिपॉजिट पे क्लिक कैसे कर सकते हैं. और डिपॉजिट पे क्लिक करके अगर आपने डीपीटी 3 फाइल किया है डज मीन कि यू आर एक्सेप्टिंग कि आपने डिपॉजिट लिया है. और अगर आपने डिपॉजिट लिया है तो आपका कंपनी लॉ का डिफॉल्ट तो सेक्शन 73 का हो गया है. एंड सेक्शन 73 एंड रूल 16 आर हैविंग हैवी पेनल्टीज. I must say heavy penalties की काफी अच्छी खासी पेनल्टीज इम्पोज करता है. So DPT 3 every year 30 जून तक फाइल करना है. This year COVID-19 के कारण DPT 3 की ड्यू डेट एक्सटेंड करके 30th सितंबर कर दी गई है. So अगर किसी का DPT 3 पे कोई क्वेश्चन है, बिकॉज ये ऑलवेज डिबेटेबल इशू है, ऑलवेज डिबेट चलते रहते हैं DPT 3 पे. तो किसी का अगर कोई इशू है तो यू कैन मेंशन. देयर इज अ वन क्वेरी only declaration of director under 164(2) or we have to cross check the master data also. I would like to say only 164(2) की declaration enough नहीं है. You also have to check the master data and all other details also. In case of real estate developer company, get advance from customer is required to show in DPT 3. Definitely you have to show in DPT 3. बट आप उसको नॉन डिपॉजिट कैटेगरी में शो करेंगे. बिकॉज अगर आप डिपॉजिट की डेफिनेशन रीड करते हो तो वहां पे रियल एस्टेट्स के लिए और कुछ और 2-3 बिजनेसेस के लिए एग्जम्पशंस दी है कि 365 दिन से ज्यादा का एडवांस हमारे पास रह सकता है. बट आपको मेंशन तो करना पड़ेगा, बट नॉन डिपॉजिट कैटेगरी में मेंशन करना पड़ेगा. So these are the 4 compliances जो कंपनीज को एवरी ईयर फर्स्ट क्वार्टर में करने पड़ते हैं. रिसिप्ट ऑफ एमपीपी 1, receipt of DIR 8, half yearly return MSME 1, yearly return E-form DPT 3. These are the 4 compliances. वर्किंग कंपनी, नॉन वर्किंग कंपनी सभी को ही करना पड़ता है. बट जस्ट इतना है कि MSME के लिए आपको देखना पड़ेगा कि MSME की कंडीशन फुलफिल हो रही है.
और DPD3 उसी केस में करना है जहां इवन ए सिंगल रुपीस का भी अगर लोन या एडवांस है। समटाइम प्रोफेशनल का क्वेश्चन होता है कि कंपनी ने डायरेक्टर से लोन लिया हुआ है, क्या DPD3 फाइल होगा? आई एम सेइंग एनी लोन, सिंगल रुपीस का भी एनी लोन अगर आपने लिया हुआ है तो आपको DPD3 फाइल करना ही पड़ेगा। Next compliances are relating to next quarter, that is July to September. अभी हमने 4 compliances डिस्कस किए थे अप्रैल टू जून के, कि अप्रैल टू जून में हमें क्या-क्या compliances करने पड़ते हैं। Next 4 compliances are relating to the July to September. So 5th compliance. अब जुलाई टू सितंबर हमें पता है कि जुलाई टू सितंबर जो मंथ है वो मंथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के हैं। Those months are relating to the financial statement. Those months are relating to the auditor report, director report. All these things we have to do in those years, in these months, in these 3 months. So जो क्वार्टर जुलाई टू सितंबर का फर्स्ट कंप्लायंस और ईयर का 5th कंप्लायंस है अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। As we are discussing since starting कि we are in the month of August and September is coming. तो इस टाइम का सबसे पहला कंप्लायंस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करना एंड ऑडिटर रिपोर्ट प्रिपेयर करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर रिपोर्ट हमें अप्रोक्सीमेटली एजीएम से पहले प्रिपेयर करनी होती है और एजीएम की ड्यू डेट होती है 6 मंथ फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो 5th compliance of the year is approval of the financial statement. 7th compliance of the year. 6th compliance is the director report. फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने के बाद कंपनीज को सेक्शन 134 में डायरेक्टर्स रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ती है। डायरेक्टर रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय मेंशनिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी अंडर सेक्शन 134। अब डायरेक्टर रिपोर्ट में भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है। यस्टरडे देयर वाज अमेंडमेंट कि आपको डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ MGT 9 फाइल नहीं करना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 एंड ऑनवर्ड्स। अब इसमें इशू क्या आता है, द लैंग्वेज इज लिटिल कंफ्यूजिंग। देयर दे हैव मेंशन कि कंपनीज को MGT 9 फाइल नहीं करना है, उसके साथ कंडीशन अटैच कर दी है, इन केस कंपनी हैड पब्लिश्ड their annual report on the website of the company and link of the annual return is given in the director report. तो पहली चीज MGT 9 उन सभी कंपनीज को अटैच करना है जिनकी वेबसाइट नहीं है। तो जिनकी वेबसाइट नहीं है उनको तो इस साल भी MGT 9 अटैच करना ही पड़ेगा, कोई वे आउट नहीं है। अब बचता है जिनकी वेबसाइट है। अब जिनकी वेबसाइट है उनको मैंडेटरी कर दिया कि वो एनुअल रिटर्न पब्लिश करेंगे। एनुअल रिटर्न होती है हमारी MGT 7। तो जिन कंपनीज की वेबसाइट है उनके लिए मैंडेटरी कर दिया है कि वो अपना MGT 7 अपनी साइट पे पब्लिश करेंगे और उस MGT 7 का लिंक डायरेक्टर रिपोर्ट में प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही है इन दिनों की डायरेक्टर्स रिपोर्ट में क्या लास्ट ईयर से इस साल कुछ चेंजेस है या नहीं है, या डायरेक्टर रिपोर्ट का फॉर्मेट इफ एनी कैन प्रोवाइड। तो आई वुड लाइक टू से कि डायरेक्टर रिपोर्ट में लास्ट ईयर से लेके इस साल में कोई चेंज नहीं आया है एक्सेप्ट दिस MGT 9 प्रोविजन। स्टिल इफ एनीवन वांट टू रीड द ड्राफ्ट डायरेक्टर रिपोर्ट, तो सेम आई हैव आल्सो published on my blog so that everyone can take the benefit of that. तो अगर किसी को डायरेक्टर रिपोर्ट स्टडी करनी है, डायरेक्टर रिपोर्ट का फॉर्मेट स्टडी करना है, तो सेम इज पब्लिश्ड ऑन माय ब्लॉग। आप लोग वहां जाके स्टडी कर सकते हैं, इट इज रेडिली अवेलेबल देयर। So this was the 6th compliance। 6th compliance की हमें अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस मंथ में करना है, इस क्वार्टर में करना है, और डायरेक्टर रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ बहुत सारे एनेक्स्टर्स भी होते हैं, तो ऑल एनेक्स्टर्स डिपेंड अपॉन द कंपनी वी हैव टू प्रिपेयर। 7th compliance of the year is under section 96, holding of the annual general meeting. Every company in each year hold in addition to any other meeting a general meeting as its annual general meeting within a period of 6 months from the closing of financial year. As per section 96, कंपनी को एवरी ईयर एक जनरल मीटिंग होल्ड करनी पड़ती है एज अ एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने की ड्यू डेट होती है 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, इंडिया में 99% कंपनीज का एनुअल फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को। 6 मंथ बनते हैं 30th सितंबर।
तो अप्रोक्सीमेटली 30 सितंबर तक एवरी कंपनी को एजीएम होल्ड करनी पड़ती है। एट कंप्लायंस, उस एजीएम को होल्ड करने के लिए कंपनी को सेक्शन 101 और सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 में एक नोटिस इशू करना पड़ता है। वो नोटिस कंपनी देती है डायरेक्टर्स को, मेंबर्स को, ऑडिटर्स को और डिबेंचर ट्रस्टी। दीज आर द 4 कैटेगरीज जिनको देना मैंडेटरी है। और 10th कंप्लायंस, उस नोटिस के साथ कंपनी सर्कुलेट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। कंपनी विल सेंड टू द मेंबर कॉपी ऑफ अप्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर रिपोर्ट, auditor report at least 21 clear days before the annual general meeting. These are the 10 compliances कि कंपनी को एवरी ईयर इस क्वार्टर में जुलाई टू सितंबर में बैलेंस शीट भी अप्रूव करनी पड़ती है, डायरेक्टर रिपोर्ट भी अप्रूव करनी पड़ती है, जनरल मीटिंग भी होल्ड करनी पड़ती है। अब सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है जो प्रैक्टिकली सिनेरियो है आज की डेट में, हमें पता है पूरे वर्ल्ड में कोविड चल रहा है और देयर वाज अ पेंडेमिक सिचुएशन, तो लास्ट 3-4 मंथ्स में नो वन वाज वर्किंग। तो दिस ईयर इट इज are not able to close their audit in month of September. It is not possible for the many companies to close their financial statement, finalize their financial statement before 30th September. अगर 30th September से पहले कंपनीज अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना पाती है, ऑडिट नहीं कर पाती है, then how they will hold the general meeting? If they will not hold the general meeting till 30th September, it shall be considered as a non-compliance under Section 96 of the Companies Act. उस केस में सभी प्रोफेशनल की क्वेरीज आ रही थी थ्रू व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप कि क्या मिनिस्ट्री ने कोई एक्सटेंशन दे दी है एजीएम के लिए, क्या एजीएम होल्ड करने के लिए कोई एक्सटेंशन दिया है मिनिस्ट्री ने। तो आई वुड लाइक टू से नो, एजीएम होल्ड करने के लिए मिनिस्ट्री ने कोई भी एग्जेम्पशन नहीं दिया है। एजीएम के लिए मिनिस्ट्री ने जो अप्रोच किया है, मिनिस्ट्री ने जो प्रोविजन दिया है एज पर सेक्शन 96, सेक्शन 96 में एक प्रोविजो है, that proviso is stating that अगर किसी कंपनी को एजीएम के लिए एक्सटेंशन चाहिए तो that company have to file an application with the concerned registrar of companies. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास पावर है कि वो आपको मैक्सिमम 3 मंथ तक का एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, उसमें कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन और रीजन देना पड़ेगा, एक्चुअल रीजन कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं एजीएम। और वो एप्लीकेशन और एक बोर्ड रेजोल्यूशन आपको फाइल करना पड़ेगा मिनिस्ट्री के पास इन फॉर्म GNL1। उसके बाद ROC will check your application. If ROC will satisfied, then ROC will allow you to extend your annual general meeting. So if ROC is satisfied, only then he will allow, and कितना दिन allowed करेगा ये भी ROC को पता है। This is the only way out as on date जो आप यूज कर सकते हो एक्सटेंशन के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन जो प्रोफेशनल का रेगुलर बेस पे मेरे पास आ रहा है थ्रू ग्रुप्स, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, बट जितने मेरे पास है अगर मैं वो डिस्कस करूंगा तो विल बी बेटर टू क्लैरिटी। अभी हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करने हैं जुलाई टू सितंबर मंथ में। अब इशू क्या हो रहा है, आई एम जस्ट टेकिंग एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। देयर इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग 2 डायरेक्टर, one director is sitting outside India, second director is in India. How they will approve their financial statement? अब बोर्ड मीटिंग करे कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए? Someone will say कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लेते हैं, बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस से कर लेते हैं। बट अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं ना तो कंपनीज एक्ट अलाउ नहीं करता फाइनेंशियल स्टेटमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस की बोर्ड मीटिंग में अप्रूव करने के लिए, आज तक अलाउ नहीं करता था। बट अप्रैल में मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन सर्कुलर पास किया, उसके बाद मिनिस्ट्री ने अलाउ किया कि कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अप्रूव करवाने हैं 30 सितंबर तक तो बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कर सकती है और उसमें अप्रूव करवा सकती है। तो आज की डेट में आप सभी के पास एक ऑप्शन है कि कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करवाने हैं, आप बोर्ड मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करो और उस मीटिंग में आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करवा सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, हाउ टू सर्टिफाई टू गेट द साइन। एक डायरेक्टर इंडिया में, दूसरा डायरेक्टर आउट ऑफ इंडिया या दूसरी स्टेट में। जो इंडिया में बैठा है उसने तो उसी दिन साइन कर दिया है, अब दूसरा डायरेक्टर कैसे साइन करे? पहला ऑप्शन, या तो एक डायरेक्टर साइन करेगा, बैलेंस शीट कोरियर करेगा, दूसरा डायरेक्टर साइन करेगा और वो मेंशन करेगा डेट और प्लेस जिस दिन उसने साइन किया है। फिर बैलेंस शीट वापस आएगी, ऑडिटर के पास जाएगी, फिर ऑडिटर ऑडिट करेगा और साइन करेगा, डेट और प्लेस एक्चुअल मेंशन करेगा जिस दिन साइन कर रहा है।
इस केस में क्या होगा, दोनों डायरेक्टर के डेट और प्लेस डिफरेंट है, ऑडिटर का भी डेट और प्लेस डिफरेंट है। और जनरली हम क्या करते हैं, एक ही बोर्ड मीटिंग करते हैं, उसमें फाइनेंशियल भी अप्रूव करवाते हैं, ऑडिट रिपोर्ट भी अप्रूव करवाते हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट भी। बट अगर आप ये सिनेरियो, ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो आप एक बोर्ड मीटिंग में दोनों काम नहीं कर पाओगे। पहली बोर्ड मीटिंग आप करोगे बैलेंस शीट अप्रूव करने के लिए, उसके बाद बैलेंस शीट सभी से साइन होगी, फिर आप एक और बोर्ड मीटिंग करोगे जिसमें ऑडिटर से साइन बैलेंस शीट को अडॉप्ट करोगे। सेकंड थिंग उसमें क्या करोगे, आप उसमें ऑडिटर रिपोर्ट अडॉप्ट करोगे। थर्ड थिंग फिर आप उसमें डायरेक्टर रिपोर्ट अडॉप्ट करोगे। एक प्रोसेस तो आप ये कर सकते हो। दूसरा वे आउट क्या है, मीटिंग में एक पर्सन जो इंडिया में है या स्टेट में है, उसने अपनी बैलेंस शीट डिजिटल सिग्नेचर से साइन कर दी। इमीडिएटली दूसरे डायरेक्टर को मेल हुआ, उसने भी अपनी बैलेंस शीट डिजिटल सिग्नेचर से साइन कर दी, और ऑडिटर ने भी या तो उसके बाद प्रिंट निकाल लिया, ऑडिटर ने भी डिजिटली बैलेंस शीट साइन कर ली। ये तो आप सिंगल मीटिंग में कर सकते हो, मीटिंग को थोड़ी देर के लिए एडजॉर्न करके। अगर ये प्रोसेस फॉलो करते हो तो आप एक ही मीटिंग में अपने फाइनेंशियल्स एंड ऑल अप्रूव करवा सकते हो। बट इसमें एक क्वेश्चन आता है, जनरली प्रोफेशनल क्या होता है कि डिजिटल सिग्नेचर अवेलेबल होते हैं प्रोफेशनल्स के पास या दूसरे डायरेक्टर के पास। क्या प्रोफेशनल अलाउड होता है डिजिटल सिग्नेचर यूज करने के लिए किसी और पर्सन के? क्या प्रोफेशनल किसी के बिहाफ पे डिजिटल सिग्नेचर लगा सकता है? तो आई विल आंसर नो, बिकॉज एज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, डिजिटल सिग्नेचर इज नथिंग एज इट इज अ सिग्नेचर ऑफ अ पर्सन डिजिटली। आज मैं अपने बिहाफ पे किसी को साइन करने के लिए नहीं बोल सकता ना। अगर कोई पर्सन मेरे बिहाफ पे करेगा तो वो खुद के साइन करेगा, ये नहीं कि मेरे साइन करके आ गया। सेम इज विद द डिजिटल सिग्नेचर, आज मेरे बिहाफ पे कोई पर्सन है डिजिटल सिग्नेचर नहीं यूज कर सकता। तो उस केस में आई विल सजेस्ट, ICAI ने एक ड्राफ्ट लेटर निकाला है, ऑथराइजेशन लेटर। ICAI का ही फॉर्मेट है, आप उस ऑथराइजेशन लेटर को यूज करो, डायरेक्टर से ऑथराइजेशन लो DSC यूज करने के लिए। प्लस आई विल सजेस्ट, जब आप DSC लगाओ, आप DSC को सिस्टम पे लगाओ, डायरेक्टर को टीम व्यूअर या एनी डेस्क पे लो और डायरेक्टर को पासवर्ड फिल करने दो, so that it will be considered कि उस पर्सन ने उसको साइन किया है instead of us. These are the way outs कि आप इस सिनेरियो में बैलेंस शीट्स को साइन करवा सकते हैं। So किसी के कोई क्वेरी है इस पे पूछ सकते हो, एक दो क्वेरीज कमेंट बॉक्स में है, I'll just check that. So कमेंट बॉक्स में पहली क्वेरी है, if loan from director then whether DPT3 is mandatory. I am saying any loan. अगर 31 मार्च को 1 रुपए का भी लोन है ना बैलेंस शीट में किसी से भी, आपको DPT3 फाइल करना ही पड़ेगा। If in any previous year company has crossed 100 crore turnover and filed annual return in XBRL more than XBRL more, then next year turnover reduced to 100 crore, then should it continue to file XBRL more? As per Companies Act, once XBRL is applicable on the company, it is applicable for the next years also. इस पे पूरा XBRL का MC की साइट पे इंफॉर्मेशन है, तो एक बार XBRL एप्लीकेबल होने के बाद अकॉर्डिंग टू माय व्यू आपको XBRL में ही फाइल करना है। So anyone have any other queries relating to the AGM financial statement, please feel free to mention in the comment box. So we have discussed 10 compliances. Can AGM be held at a shorter notice of less than 20 days? Yes. AGM can be held at shorter notice with the approval of the 95% of the members. 11th compliance is DIR3 KYC. जब ये DIR3 KYC नहीं आया था ना, उससे पहले KYC की जब भी बात होती थी हमारे माइंड में एक ही चीज आती थी, बैंक्स। बिकॉज जनरली क्या होता था, सभी KYC बैंक्स में ही होती थी। बट DIR3 KYC मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया फॉर द KYC ऑफ डायरेक्टर। All the director of the company shall file this form on or before 30th September every year. Every year 30th September से पहले सभी डायरेक्टर्स को अपना DIR3 KYC फाइल करना है। DIR3 KYC में भी दो चीजें हैं, एक ई फॉर्म है, एक वेब बेस्ड फॉर्म है। ई फॉर्म तो उस केस में फाइल करना पड़ता है कि जिस केस में आपने जो लास्ट KYC फॉर्म फाइल किया था तब से लेके आज तक में आपके कोई पर्टिकुलर्स में चेंज है, तो उस केस में तो आप ई फॉर्म फाइल करेंगे। अगर आपके पर्टिकुलर्स में चेंज नहीं है, जो लास्ट टाइम आपका KYC के टाइम पर्टिकुलर थे और आज भी वही है, तो आपको सिर्फ वेब फॉर्म फाइल करना है, KYC फॉर्म।
E-KYC फॉर्म नहीं फाइल करना है। So anyone have any query? These were the 11 compliances जो हमें फर्स्ट हाफ ईयर में करने पड़ते हैं फाइनेंशियल ईयर के, और जैसा कि हमने डिस्कस किया कंपनीज का स्टेटस मैटर नहीं करता, ये compliances सभी को करने पड़ते हैं। There should be a gap of 21 clear days between BOD और AGM और by shorter notice. In case कंपनी अगर shorter notice पे करती है फिर तो आप एक दिन के गैप से भी कर सकते हो, 21 दिन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। Next are the compliances relating to the third quarter, that is relating to the October to December. अब अक्टूबर टू दिसंबर में क्या-क्या मैंडेटरी कंप्लायंसेस कंपनीज को करने पड़ते हैं। 12 कंप्लायंस, जैसे अभी हमने लास्ट क्वार्टर में जुलाई टू सितंबर में बैलेंस शीट्स बनाई, डायरेक्टर रिपोर्ट बनाई, ऑडिटर्स रिपोर्ट बनाई, एजीएम की, अब उनकी फाइलिंग्स करेंगे। Next compliance is under section 134 AOC4. Company is required to file balance sheet along with statement of profit and loss account, cash flow statement report auditor in this form within 30 days of holding of AGM. As we have discussed, 99% cases में AGM 30 सितंबर को होती है, तो 30 days from 30th September is the 29th October. So that's why I have kept this form in the third quarter. 29th October तक companies को ये form file करना पड़ता है। Next is e-form filing. Requirement of the annual form. Every company will file annual return within 60 days of holding of AGM. Annual return will be for the period of 1st April to 31st March. तो जनरली AGM से 60 days में annual return file करनी है MDT 7. AGM of 30 सितंबर होती है 99%, तो annual return जो submit करनी है that due date is the November. Next is MDT 9. Private company having paid up share capital of 10 crore or more. Turnover of 50 crore or more shall be certified by the company secretary in practice. अगर आपकी कंपनी की टर्नओवर या पेड अप शेयर कैपिटल इस क्राइटेरिया में फॉल करती है तो आपको एनुअल जनरल मीटिंग आपको एमजीटी 8 साइन करवाना पड़ेगा, आपको एमजीटी 8 प्रैक्टिसिंग सीएस से साइन करवाना पड़ेगा। So these are the important compliances. अगर इन compliances को नहीं करते हैं तो there are a lot of penalties on the companies. So these are the 14 compliances for the first 3 quarters. Now compliance for the January to March. Practically there is no mandatory compliance for this quarter. January to March में कोई ऐसी mandatory filings नहीं है जो सभी companies को करनी ही पड़ेगी। इनके अलावा भी कुछ compliances जो companies को करने पड़ते हैं। Section 173 subsection 1 board meeting. Every company shall hold a minimum number of 4 board meetings of its board of director every year in such a manner that maximum gap between the 2 meetings should not be less than 120 days. हर प्राइवेट कंपनी को ईयरली 4 बोर्ड मीटिंग करना मैंडेटरी है। उन चारों बोर्ड मीटिंग में मैक्सिमम गैप जो बोर्ड मीटिंग्स में हो सकता है 120 डेज का हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। And one more thing, many time professional are confused कि क्या हमें बोर्ड मीटिंग क्वार्टरली करनी होगी या नहीं। तो कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि हमें क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग करनी ही पड़ेगी। 16th compliance maintenance of statutory register. Company will maintain the following registers: register of director, register of shareholding members. These are the mandatory registers जो कंपनी को mandatory maintain करने ही पड़ेंगे। And 17th compliance is appointment of auditor. The auditor will be appointed for the 5 year from the ADT 1 file for the 5 year appointment. So जो हमारा auditor appoint होगा, auditor 5 year के लिए appoint होंगे। Companies Act में ऐसा कोई concept नहीं है कि auditor को हम 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए appoint करें। सिर्फ ऐसी 2 condition है जब auditor 1 साल के लिए appoint होगा, जब नई company है, पहला auditor है या casual vacancy। इसके अलावा कोई वे आउट नहीं है कि आप auditor को 5 साल से कम के लिए appoint करेंगे। So above mentioned are the 17 compliances जो एक प्राइवेट कंपनी को मैंडेटरीली एवरी ईयर करने ही पड़ते हैं। प्राइवेट कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इन 17 compliances को वो अवॉइड करे। तो ये 17 compliances हर कंपनी एवरी ईयर करेगी ही करेगी। So these are the 17 compliances. Let's discuss for the 5 to 10 minutes. I will take on the public limited compliances. Then we will take the queries if everyone having. So public limited company means which is not a private company, and most importantly, private provided that a company which is subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company. अगर कोई कंपनी
पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो वो प्राइवेट कंपनी भी डीम्ड पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। और एक बार अगर एक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी डीम्ड पब्लिक कंपनी मानी गई तो all the compliances applicable on a public company shall be applicable to the private companies also. पब्लिक कंपनी के क्या फीचर है? मिनिमम कैपिटल क्राइटेरिया यहाँ पे भी नहीं है। एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, 2 अक्टूबर 2018 में एक अमेंडमेंट आया था कि फ्रॉम 2 अक्टूबर 2018 it is mandatory for all the public companies to convert their share into डीमैट। अब पब्लिक कंपनीज पे 2 अक्टूबर 2018 से ये कंडीशन आ गई थी कि उनको ISIN नंबर अप्लाई करना है और अपने शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट करवाना है। अब कंपनीज ने ISIN अप्लाई किया नहीं किया, ये नॉन कंप्लायंस है कंपनीज का, और इसके लिए रिटर्न भी फाइल करनी है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो अभी हमने डिस्कस किया था तो MBP 1 सेम चीज है, DIR 8, MSME 1, हाँ दिस इज अ न्यू कंप्लायंस जो पब्लिक का प्राइवेट कंपनीज पे नहीं था। हाफ ईयरली रिटर्न, प्राइवेट कंपनी में तो हम सिर्फ MSME 1 हाफ ईयरली फाइल कर रहे थे। पब्लिक कंपनीज के केस में रूल 9(3) में हम PS 6 भी फाइल करेंगे, reconciliation of share capital audit report. Company is required to submit the reconciliation of share capital audit report with the ROC audited by the practicing company secretary at the end of the half year within 60 days of end of half year. तो कंपनीज को एवरी ईयर विदिन 60 डेज ऑफ एंड ऑफ हाफ ईयर ये रिटर्न फाइल करनी है, मैंडेटरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ लोगों की क्वेरीज आती है ग्रुप्स में लाइक कि मेरी पब्लिक कंपनी है बट पब्लिक कंपनी के शेयर डीमैट में नहीं है तो मुझे फाइल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। आपके शेयर होल्डर ने शेयर डीमैट में कन्वर्ट किए हैं नहीं किए हैं वो डिफरेंट थिंग है। एज अ कंपनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको PS 6 फाइल करना ही पड़ेगा। सो 60 डेज में फाइल करना होता है तो ड्यू डेट है मार्च के लिए 30th में, सितंबर के लिए 29 सितंबर। और जो पुराने PS 6 थे, बिकॉज अभी लास्ट मंथ ही PS 6 फॉर्म लॉन्च हुआ है तो पिछले 2 हाफ ईयर्स के लिए जो ड्यू डेट है वो 13 सितंबर है। तो 13 सितंबर तक पब्लिक कंपनीज को पुराने अपने MSME फॉर्म्स को सॉरी PS 6 फॉर्म को फाइल करना है। देन DPT 3, MGD 6, DRT KYC, AOC 4, MGD 7, MGD 8. All other compliances are almost same for the public companies and the private companies, but this was the actual जो mandatory compliances में से एक ये जो था जो different था। बाकी तो कैपिटल बेस पे बहुत सारे compliances है कि अगर कैपिटल क्राइटेरिया चेंज होता रहता है, टर्नओवर क्राइटेरिया, तो उसके बेस पे तो बहुत सारे रिटर्न्स फाइल करनी ही पड़ती है। Is it compulsory to file ADT 1 every year? ADT 1 एक बार फाइल होगा 5 सालों में, जब हम 5 साल के लिए अपॉइंट करते हैं उस ईयर में फाइल होगा, उसके बाद एवरी 5 इयर्स में हमें ADT 1 फाइल करना है। तो एवरी ईयर वी डोंट रिक्वायर टू फाइल द ADT 1 विद द ROC। सो दीस वर द general annual compliances for the private companies and public companies which we have to do every year। मतलब यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है कि हम इसको छोड़ दें या नहीं करें। और आपको पता है कि these days मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर कितनी हैवी अमाउंट्स में पेनल्टीज इंपोज कर रही है। बिकॉज अगर आपको मैं पेनल्टीज का एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, MC की साइट तो आप सभी यूज करते हैं। MC की साइट पे होम पेज में राइट हैंड साइड में जो पॉइंट्स होते हैं वहां पे एक पॉइंट है एडजुडिकेशन ऑर्डर। कुछ एडजुडिकेशन ऑर्डर्स आप ओपन करके देखना आपके कंसर्न्ड ROCs के, ROCs ने लेट फाइलिंग ऑफ फॉर्म पे भी हैवी पेनल्टीज लगाई है और उनके ऑर्डर पब्लिक फोरम में हैं। तो एडजुडिकेशन ऑर्डर वाले आप उस कॉलम में जाके देखेंगे तो बहुत पेनल्टीज ROC ने लगाई है और वो सभी अवेलेबल है ऑर्डर्स वहां पे। Someone has mentioned the question whether ADT 1 is required to file for first auditor. As per Companies Act, ADT 1 is not mandatory to file for the first auditor, but it should be filed because बहुत सारी चीजें जो उससे लिंक्ड होती है, तो it is suggested to file the ADT 1 for the first auditor. So along with this, I have completed my presentation. So now if anyone having any queries, we are free to answer all the queries. Even I would like to say not only till this webinar, अगर आपकी webinar के बाद भी कोई queries है, so you can frankly ask to me on my WhatsApp number in my groups. So now I hand over to the Prabhat ji, the mic. All members are requested to raise their question in chat box. If any question.
Devesh sir, no question is coming. Yes, please. Sir, one question from my side is that कि अगर मैं किसी कंपनी का XYZ का प्राइवेट लिमिटेड का मैं ऑडिट रिपोर्ट साइन करने वाला हूँ Right. एंड उसने 3 साल तक अपना कोई भी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा है, Right. आपने बोला 3 साल के बाद वो डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं उस बिल्कुल। कंपनी से, तो फिर उस केस में फिर कौन डायरेक्टर साइन करेगा? देखो उस केस में क्या है, पिछले 3 साल से तो वो डायरेक्टर थे, उन ईयर्स की बैलेंस शीट तो वही साइन करेंगे, बट अब 3 साल चल निकल गए, 4th ईयर की बात करें या 3 सालों की बैलेंस शीट को डिपार्टमेंट में फाइल करने की बात करें, तो उसके लिए आपको नए डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे। और अगर आपके सारे डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है तो नए डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए आप अब डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर का तो डीएससी यूज कर नहीं सकते हो नए डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए। उस केस में क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, आपको एक जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी शेयर होल्डर्स की, चाहे वो डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर ही शेयर होल्डर है, बट एज ए शेयर होल्डर वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। आपको एक जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी शेयर होल्डर्स की, उसमें आप 2 नए डायरेक्टर अपॉइंट करोगे और उन दोनों नए डायरेक्टर को आरओसी के बैक हैंड से अपॉइंट करवाओगे कंपनी, फिर उनके डीएससी से आप सारी बैलेंस शीट्स और वो अपलोड कर पाओगे, फाइल कर पाओगे। ये तो कंपनी की तरफ से ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो भी है कंप्लायंस तो कंपनी की तरफ से होगी। Yes, definitely. Okay. One question is there: is loan from director whether DPT3 is mandatory? Yes, we have already discussed. Even there is a single rupees of loan, हमें DPT3 फाइल करना ही पड़ेगा, वो किसी से भी हो। So in case of 1% कंपनी फिर क्या करना होगा अगर वो सिंगल डायरेक्टर और 3 साल से ज्यादा वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो? उस केस में भी एज अ शेयर होल्डर वो उसके पास पावर एज अ शेयर होल्डर वो किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करेगा और उसका रेजोल्यूशन बनाएगा एक नॉर्मल और उसको आरओसी में सबमिट करेगा विद ऑल अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय द आरओसी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर। Okay sir, thank you. एक क्वेश्चन है, इन केस ऑफ कंपनी चेंज ऑडिटर इन एजीएम बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म बट फॉर्मेलिटीज। पहली चीज, कंपनी एजीएम में ऑडिटर चेंज नहीं कर सकती है। कंपनी ने अगर एक ऑडिटर अपॉइंट कर दिया तो वो 5 साल तक ऑडिटर रहेगा। सिर्फ दो ही ऑप्शन है आपके पास ऑडिटर चेंज करने का। पहला ऑप्शन, या तो वो ऑडिटर खुद रिजाइन कर दे, बट अगर वो ऑडिटर खुद रिजाइन नहीं करता, इन दैट केस आप ऑडिटर को एजीएम में हटा नहीं सकते हो। आपको ऑडिटर को रिमूव करने के लिए पूरा रिमूवल ऑफ ऑडिटर का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, आपको रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। रीजनल डायरेक्टर के जब आप अप्रूवल लेने जाएंगे वहां पे प्रॉपर हियरिंग्स होगी, आपको भी बुलाएंगे, दूसरे ऑडिटर्स को भी बुलाएंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। उन सभी में अगर आप सक्सेसफुली अपना पॉइंट रख पाए, देन ओनली द ऑडिटर विल बी रिमूव्ड बाय द आरडी। कंपनी के पास जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन चेंज ही इसीलिए हुआ था 2014 में। 5 साल की जो ऑडिटर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट इसीलिए आई थी ताकि ऑडिटर अपॉइंट करना, रिजाइन करना कंपनी के हाथ में ना रहे। तो अब कंपनी की कोई पावर नहीं है ऑडिटर को रिमूव करने की। ऑडिटर को रिमूव करना तो पूरा आरडी का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। नेटली सर, मेंबर्स आपके पीडीएफ जो है आपने बोला है, आपने पीडीएफ जो प्रेजेंट करा है आप काइंडली मेल कर देंगे हमारे ब्रांच के, I will share this presentation. आप लोग अपने मेंबर्स को उसको सर्कुलेट कर देंगे। Sure, definitely. Okay sir, thank you for your brilliant session sir, and आपने you truly said sir कि हम जब सवेरे जागते हैं और कंप्लायंस कितनी ज्यादा तादाद बढ़ चुकी है कि जब हम सवेरे जागते हैं तो लगता है कि कौन सा नोटिफिकेशन आने वाला है और कौन सा नोटिफिकेशन आया है। डेट्स पर डेट्स, इतनी सारी डेट्स हैं कि सारी डेट्स भूल जाएंगे। Thank you sir. Now I would like to invite our branch treasurer CA Pankaj Makkar to give vote of thanks. Over to Pankaj. Thank you, Prabhat ji. Thanks a lot, sir, for explaining every minute details regarding compliances of private companies. Truly, the compliances has increased and actually strict these days. Also, for non-compliances, focusing on non-compliances that could lead for disqualifications. And yes, due to this pandemic, there are delays and there have been allowed for a few delays. So we as a consultant or suggestions should take the full benefit of the same and should clear all the compliances. A special thanks to our speaker, CS Devesh Goyal, who is always welcome, always available with us.
whenever invited on a single call. Thanks a lot, sir. And we'll keep you disturbing and keep you inviting regularly. It's my pleasure. It's always great, sir, when you are available with us. And the detailing and the briefing that you give is a true knowledge for us regarding this field. Thank you so much. Thank you. Moving forward, I would like to thank all our patient listeners who are available with us continuously throughout the session and who have raised their doubts and queries regularly during the sessions. With all the demands regarding the specific sessions on different fields, we are trying to focus that we would be covering each and every field in our different webinars. And as confirmed by the committee, we would be having weekend webinars on every Friday or Saturday. With these words, I would like to thank all our patient listeners. Thank you.